Hello guys, welcome to Rohit classes. Today we will discuss about a metal and non-metals. What are the properties of metals and what are the properties of non-metals? Today we will discuss. Now, firstly we will discuss about a metal. What do you understand by metal? What are the properties of metal? What are the physical properties, chemical properties of metal? And what are the reactions involving in this? Now, basically, firstly, we discuss metals. Metal is nothing but metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. What is the meaning of malleable and ductile? We will discuss here. Malleable is nothing but जब कभी कोई भी मेटल को बीट किया जाता है और उसे एक सीट की फॉर्म में जो है प्रिपेयर किया जाता है तो उसे हम मॉलेबल कहते हैं. डक्टाइल का मतलब होता है कि वेन एवर वी ड्रॉन सम वायर फ्रॉम अ मेटल्स then we basically refers a term is known as a ductile. And here are some examples like iron, aluminium, silver, copper, gold, platinum, potassium, sodium, calcium, magnesium, etc. are all are these are examples of metals. Now we will discuss about the what are the properties of metal, how we can identify the metals. On the basis of properties we can identify the metals and non-metals. So basically we will discuss one by one what are the properties. Firstly, basically we all are familiar with these properties. Metal are good conductor of electricity, hardness, their states, sounds, conduction, malleable, etc. Firstly, we will discuss about a hardness. Most of the metals are hard except alkali metals such as sodium, potassium, lithium. These all are metals, but they are not hard. They are not hard. They are basically soft metals. They can be cut by using a knife. You can easily cut sodium, potassiums, lithium, but in case of hard metals you cannot cut with your knife. Strength, basically if we talk about a strength of metals, the most of the metals are strong and have high tensile strength. Because of this, big structures are made of using a metal such as copper, iron, except sodium and potassium which are soft metals. Now coming to the next one is state. Metals are solid at room temperature except for mercury. मरकरी जो होता है, मरकरी को हम कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, बेसिकली मरकरी जो है मेटल होता है लेकिन वो एक रूम टेम्परेचर में हम उसको जो है एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आ जाएगा. वो साउंड के बारे में, मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, रिंगिंग साउंड जो है प्रोड्यूस करता है. एक तरीके से सोनोरस इन नेचर होता है, बेसिकली कॉल्ड सोनोरस इन नेचर. और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादातर मेटल्स यूज होते हैं, गिटार वगैरह. Now conduction is nothing but it conduction of a heat and electricity. So basically we know that metals are good conductor of electricity. This is a cause that electric wires are made up of metals like copper and aluminiums. Malleability, basically we discussed earlier about malleability. What is the meaning of malleability? Malleability is nothing but metals are malleable. Why? Because this means the metals can be beaten into a thin sheets. Because of this property, iron is used in making a big shapes. मॉलेबल इज नथिंग बट वेन एवर भी जब भी हम बीट करते हैं मेटल्स को, उसको सीट में ड्रॉन करते हैं तो सीट जो बनती है वो मॉलेबल की तरीके से ही बनती है. बीट कर करके जो उसको सीट में जो है बनाया जाता है. डक्टिलिटी में वायर्स के अंदर ड्रॉन करते हैं. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है मेटल्स का, सोडियम पोटेशियम मेटल्स को छोड़ के. डेंसिटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई डेंसिटी मास पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है. कलर्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रीन कलर बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शंस. गोल्ड एंड कॉपर को छोड़ के बाद में मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर्स होते हैं. Now coming to the next one is the properties of metals. Properties means basically there we will discuss about we will discuss the reaction of a metals with oxygen and other their oxide. Basically firstly we will discuss about the reaction with the oxygen. So whenever metal react with the oxygen it gives a metal oxide. Next one is a reaction of a potassium with oxygen. Potassium, whenever potassium react with oxygen it gives a twice of K2O, that means a potassium oxide. Next one is a reaction of sodium with oxygen.
whenever oxygen is react with a sodium, whenever is oxygen is react with a whenever metal react with whenever sodium uh, comes in a contact with a oxygen, then it produces sodium oxides. Lithium, potassium, sodium, these all are known as alkali metals. Alkali metals react vigorously with oxygen. जब भी हम सोडियम को इसलिए कहते हैं ना कि हवा में नहीं रहनी चाहिए, वैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये बर्न हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो सोडियम का एक नेचर है, सोडियम पोटेशियम और लिथियम का नेचर है कि ये क्या होता है कि ये वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करता है विग्रसली रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करता है विग्रसली करता है, इसलिए हम इसको एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विथ ऑक्सीजन, जो कॉपर मेटल होती है उसकी रिएक्शन क्या होती है, तो ये बेसिकली ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर। जब भी कभी मेटल किसी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल्स विथ वाटर, अगर सोडियम का हम रिएक्शन देखें इसके साथ वाटर के साथ, तो ये NOH यानी एक बेस बनाएगा और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विथ वाटर, कैल्शियम के साथ क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या होता है, ये एक एंटी एसिड्स होता है, ये एक एंटी एसिड्स होता है और ये हाइड्रोजन गैस जो है हमारा यहाँ से निकाल देगा। तो हमने इन सारे रिएक्शनों में एक कॉमन बात देखी कि हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी और सब ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो मेटल जब भी कभी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी इससे। नेक्स्ट वन स्टीम के बारे में बात करें तो वही वाटर है, ये भी वही बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोजन बनाएगा। एल्युमिनियम मेटल और वाटर के साथ क्या बनाएगा, Al2O3 बना देगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जिंक मेटल वाटर के साथ क्या है कि वो जो है वो भी ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो जितने भी मेटल होंगे, मेटल जब भी कभी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड्स व्हेनेवर मेटल कॉन्टेक्ट विथ एसिड, मेटल और एसिड जब आएंगे एक दूसरे के साथ तो ये मेटल सॉल्ट यानी सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हमने ये जो है सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर कि कभी भी मेटल जो है, कभी भी एसिड जो है मेटल के कॉन्टैक्ट में आएगा या मेटल एसिड के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये सॉल्ट देंगे और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस देंगे। अगला है, इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे सोडियम एक मेटल है, HCl एक जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और दोनों जो कंबाइन होंगे तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन देंगे। मैग्नीशियम के बारे में बात करूं, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी MgCl2 देता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देंगे। जिंक के साथ बात करूं तो जिंक में H2SO4 जब भी डालेंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देंगे। तो जिंक सल्फेट सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा हमें जब भी कभी एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल ऑक्साइड्स ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में होता है। तो मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, जब भी कभी हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड लेंगे और उसमें क्या डिप करेंगे कि लिटमस पेपर डिप करेंगे तो रेड लिटमस जैसी डालेंगे वो ब्लू में टर्न हो जाएगा। अब रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विद कुछ ऑक्साइड्स है जिनके वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो ऑक्साइड की रिएक्शन के साथ वाटर के साथ देखें तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड करेगा। पोटेशियम के साथ देखेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज पे मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन किस तरीके से बनते हैं, इसमें कुछ मेटल्स दे दिए जाएंगे और उसको अरेंज किया जाएगा या उनको कहा जाएगा कि अरेंज करो इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो यहाँ पे पोटेशियम जो है डाउन द ग्रुप देखते हैं, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। लेकिन इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, टॉप से लेके बॉटम में डिक्रीज हो रही है। कैसे याद करें, K4 और ये है तो यहाँ पे याद रखेंगे कटरीना KNA, CA यानी कार, MG यानी मांगे, AL ऑल्टो, ZN जिंक, FE जिंक क्या होता है, अल्टोजेन बोल सकते हैं। उसके FE से क्या हो जाएगा, फेरारी हो जाएगा। PB पंजाब, H4 हैदराबाद, ठीक है। CU
कलकत्ता, एच जी से हम ये याद कर सकते हैं, है आगे आगे यानी ए जी ए यू। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कटरीना कार मांगे, अल्टोजन फरारी पंजाब हैदराबाद कलकत्ता है आगे आगे। तो बेसिकली इससे हम जो है एक तरीके से याद कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज टॉप टू बॉटम किस तरीके से रिएक्टिविटी होती है। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सोडियम ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अगर हम कोई भी मेटल्स लें और उसके सॉल्यूशन लें अदर मेटल सॉल्ट्स के, तो किस तरीके से होगा। मेटल ए लिया और उसी का सॉल्यूशन हमने ले लिया, जैसे देखो एफ ई है, सॉल्ट और मेटल भी है, कोई दूसरा मेटल है उसका हमने सॉल्यूशन लिया, एक कॉपर मेटल होगा एक एफ ई होगा। एफ ई को हमने क्या रखा है उसी तरीके से कॉपर सल्फेट जो हमने ले लिया है इसका एक सॉल्यूशन बना लिया हमने कॉपर का, कॉपर मेटल का सॉल्यूशन बना लिया कॉपर सल्फेट की फॉर्म में। तो हमने ये क्या देखा कि यहाँ पे एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है जो मैंने चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किया है। इसका जो लिंक होगा चैप्टर फर्स्ट का जो है डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट भी क्लियर है, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में दोनों में क्लियर है, चैप्टर सेकंड भी क्लियर है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें जो है यूट्यूब पर डाल रखा है, पार्ट बाय पार्ट में भी है, वन सिंगल वीडियो में भी है, आप उसको जो है देखें तो ये समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर नीचे आता है आयरन ऊपर आता है, तो आयरन क्या है हैवी रिएक्टिविटी है, यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करेगा भगा देगा, ठीक है। तो एफ जो है कॉपर को भगाएगा और एफ SO4 बना लेगा और ये कॉपर बना लेगा। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, इन सब के अंदर क्या एल्यूमिनियम कॉपर को हटाएगा, जिंक कॉपर को हटाएगा, और ये सब डिस्प्लेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। हाईली रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद नॉन मेटल्स आता है। नॉन मेटल्स बिल्कुल अपोजिट होता है एज कम्पेयर टू अ मेटल्स। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या करेंगे, हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड रेदर दे आर जनरली सॉफ्ट होते हैं वो। स्टेट नॉन मेटल्स में भी सॉलिड लिक्विड और गैसेस हो सकती है। लस्चरस नॉन मेटल्स हैव अ डल अपेयरेंस होता है, कोई चमक वमक नहीं होती उसके अंदर। सोनोरिटी के बारे में, सोनोरस इन नेचर होता है, प्लास्टिक पे बीट करोगे कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई रिंगिंग बेल नहीं बजेगी, ठीक है। कंडक्शन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, हीट होती है। मॉलेबल डक्टिलिटी कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो डेंसिटी मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। कलर नॉन मेटल्स आ रही है ना, मैनी कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। मेटल्स के अंदर मैक्सिमम ऑफ मेटल्स आ रही है ग्रे कलर्स एक्सेप्ट जो दो बताए गए थे, एक कॉपर हो जाता है और एक गोल्ड हो जाता है। बट इन केस ऑफ अ नॉन मेटल्स दे अपियर इन अ डिफरेंट कलर्स, बट इन अ केस ऑफ कंडक्शन क्या होता है, बैड कंडक्शन करते हैं, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। हार्डनेस जो है बिल्कुल नहीं होता, लस्चरस होता नहीं है, सोनोरस होता नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिट होगा इसके अंदर। कार्बन के बारे में एक केस है कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है, कार्बन तो नॉन मेटल्स हैं लेकिन इसके जो एक एलोट्रॉप्स हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। आयोडीन जो है नॉन मेटल है लेकिन वो लस्चरस है, हैविंग अ शाइनिंग अपीयरेंस। ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या होता है कि उसके अंदर चमक रहती है, लस्चरस इन नेचर है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ अ डायमंड इन अ नॉन मेटल विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं इसके अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में बात करें तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन के बारे में बातें करेंगे। तो नॉन मेटल कभी भी, जैसे कार्बन प्लस में CO2 यानी कंबशन हो रहा है यहाँ पे, तो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी और हीट निकाल लेगी, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। तो बस यही सारी चीज़ होती है। बेसिकली कंबशन रिएक्शन है, देखने से ही पता चल रहा है C+O2 CO2 है, इसमें से हीट निकलेगी, और साथ साथ में ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है, ये भी चीज़ें याद रखनी है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। एक्जोथर्मिक में क्या होता है, हीट जो है इसमें से बाहर निकल जाती है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के बारे में बात करें तो CO2 में H2O डालेंगे तो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बना लेगा। अब ये वाटर के साथ रिएक्शन नॉन मेटालिक की किस तरीके से होती है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे CO2 और H2O यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाएगा, SO2 और H2O यानी H2SO3 बनाएगा, SO2 और O2 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा। जब भी 2SO2 जो है O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यानी कि SO3 बना लेगा। SO3 वाटर के साथ करेगा तो H2SO4 बनाएगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे H2Cl2, H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन है, ये दोनों जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो HCl बनाएगा यानी कि एक एसिड बनाएगा,
और P4Cl2 के साथ PCl3 एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना लेगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन गैसेस किस तरीके से होंगी? जब भी कोई भी हाइड्रोजन गैस किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगा? कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाएगा, यानी H2S बनाएगा, 2NH3 बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अगर हम करें, एक मेटल लें, एक नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो आयंस के बारे में बात करें तो पॉजिटिव आयंस के बारे में बात करें। यहाँ पे सोडियम के बारे में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लिया है और ये क्या है? सोडियम आयन बना गया है, यानी पॉजिटिव आयंस है, यानी कैटायन आ गया इस पर। मैग्नीशियम पे 2 आयंस है। नेगेटिव आयंस के बारे में बात करें तो कभी भी कोई भी जो, जैसे यहाँ पे क्लोरीन के बारे में हम बात करते हैं तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के अंदर क्या होता है? बेसिकली 287 जो है इसके अंदर, यानी कि कन्फिग्रेशन होती है। और कन्फिग्रेशन के अगर हिसाब से बारे में बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है। एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा ये, और इलेक्ट्रॉन रिच होकर ये क्लोराइड आयन बना लेगा। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। जब कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा मेटल से नॉन मेटल की तरफ तो आयनिक बॉन्डिंग बनेगी। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग कोलम्बियन फोर्सेस होता है इसके अंदर। फॉर्मेशन ऑफ NaCl के अंदर कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या है कि Na लाया जाएगा। Na पे पहले से ये ऑलरेडी 281 होगा। जैसे ये रिड्यूस करेगा एक इलेक्ट्रॉन को तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इसका Na इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है। Cl के बारे में बात करें हम तो Cl के अंदर क्या है कि वो ऑलरेडी क्या है? Cl287 है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कुछ इस तरीके से क्लोराइड आयन बना लेगा और इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो NaCl बनाएगा, और NaCl क्या है? एक पॉजिटिव चार्जेज है, एक नेगेटिव चार्जेज है। ये आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का मेटल से नॉन मेटल की तरफ। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, जितने भी होते हैं सॉलिड होते हैं। ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ये जनरली डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल एट्सेट्रा। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड स्टेट के अंदर, बट इन अ मोल्टन स्टेट दे कंडक्ट। क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या होता है कि आयंस फ्री हो जाते हैं और ड्यू टू फ्री आयंस जो है वो कंडक्शन कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में जो है वो पैक होते हैं और दे कैन ऑसिलेटेड एट देयर ऑन पोजीशन, और इस वजह से आयंस मूव नहीं कर पाते तो वो कंडक्ट नहीं कर पाते। तो आयनिक सॉलिड जितने भी होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर जो है वो कंडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन वो जो है मॉल्टन स्टेट के साथ कंडक्शन करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो मैक्सिमम जितने भी हैं अकरेंस अगर हम मेटल का देखेंगे तो वो गोल्ड और सिल्वर को छोड़ के सब जो है ये कंबाइन स्टेट में आते हैं। तो सोर्सेज ऑफ मेटल क्या? मेटल्स अकर इन अर्थ क्रस्ट एंड इन सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। तो मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मिनरल्स के पास हमेशा क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है। ओर्स के बारे में बात करें तो मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स होता है। तो मेटल्स फाउंड इन अ मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीजेज सच एज जिंक, Fe, Pb आर यूजली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स। इन सभी चीज़ों में रखा जाता है। मेटल जो है टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये फ्री स्टेट में होते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव। जैसे ये सारे एग्जाम्पल हो गए इसके। मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज एविडेंट इन नेचर एंड इज़ अ वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? ऑक्साइड बना लेता है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में अगर ये चार्ट देखें तो इसमें क्या है कि मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिविटी का अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से जो है इसको प्योर बनाया जा सकता है। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में कार्बोनेट ओर से और सल्फाइड ओर से बनाया जा सकता है। कार्बोनेट ओर के बारे में बात करें तो कैल्सिनेशन मेथड आएगा। सल्फाइड ओर के बारे में बात करें तो रोस्टिंग मेथड आएगा। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में सल्फाइड ओर से, रोस्टिंग से, और इस तरीके से हम मेटल रिफाइनिंग से कर सकते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल हो गया, रिडक्शन टू मेटल करेंगे, फिर प्योरिफिकेशन ऑफ करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स इस तरीके से, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू क्रूड मेटल कैसे बदलेंगे, मतलब बेसिकली रोस्टिंग प्रोसेस के बारे में बात हो रही है।
तो हीटिंग जैसे ही कोई भी जिंक सल्फाइड है, इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, फिर SO2 दे देगा। जिंक कार्बोनेट को कैल्सिनेशन मेथड से करेंगे, हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और CO2 बना देगा। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग? तो कैल्सिनेशन इट इज़ डन फॉर अ कार्बोनेट और के लिए किया जाता है, ये सल्फाइड और के लिए किया जाता है, ये कार्बोनेट और हीट करा जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, सल्फाइड और को हीट किया जाता है प्रेजेंस ऑन ऑक्सीजन में। उसके बाद CO2 गैस रिलीज होती है इसके अंदर CO2 गैस जो है रिलीज होती है और मेटल ऑक्साइड जो है ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो इसमें CO2 गैस इज रिलीज एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन, बट इन अ केस ऑफ अ रोस्टिंग SO2 गैस इज रिलीज एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन। अब हम रिडक्शन के बारे में बात करेंगे, रिड्यूस कैसे किया जाएगा। अब जैसे सीना पर है HGS है, इसमें ऑक्सीजन डालेंगे तो ये HGO में रिड्यूस हो जाएगा और साथ में SO2 निकल जाएगा। HGO को में हम क्या करते हैं, Hg और O2 दोनों दे देगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ अ कॉपर मेटल कैसे करेंगे? कॉपर जो होता है वो कॉपर ग्लैंस की फॉर्म में होता है, रोस्टेड किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग टर्न्स कॉपर ग्लैंसेस इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड इज देन हीटेड in the absence of air. This reduces to copper 1 oxide into a copper metal. तो ये दो रिएक्शन जो है स्पीसीज पे करी गई है। एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल ऑफ अ मिडल एक्टिविटी। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक कैसे है? जिंक को पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखेंगे, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज निकल जाएगी। फिर जिंक कार्बोनेट से अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये जिंक जड़न यानी डिकम्पोजिशन हो रहा है इसका। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहाँ पे इसका कंबशन हो रहा है और यहाँ पे इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड में कभी भी हम कार्बन डाल देंगे तो जिंक प्लस में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा। लेड को लेड ऑक्साइड से कैसे दिया जाएगा? लेड ऑक्साइड जो है PbO होता है, उसमें कार्बन डाल दो तो 2Pb प्लस CO2 दे देगा। MnO2 में Al डाल दो तो Mn प्लस में Al2O3 दे देगा। थर्माइट रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो Fe2O3 में Al डाल देंगे तो Fe प्लस में Al2O3 प्लस H दे देगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आता है, इसमें दिखाया गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास होगी थ्रू द मोल्टन स्टेट ऑफ मेटल और से, तो मेटल बीइंग अ पॉजिटिवली चार्ज डिपॉजिट ओवर दैट। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैथोड के पास जाएगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो एनोड के पास जाएगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या सोडियम क्या है, सोडियम को ब्रेक डाउन किया गया पॉजिटिव कैटायन में, ये Cl2 यानी क्लोरीन है। अब यहाँ पे क्या होता है, रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन किया जाएगा तो यहाँ पे क्या है कि आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कॉपर किसके पास जा रहा है, कि कैथोड के पास जा रहा है। ठीक है, CO2 प्लस जो है कैथोड के पास जा रहा है। तो अब ये जो भी आपने सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग a lump of impure metals and a thin strip of pure metals are dipped in the salt solution के अंदर thin जो है strip of pure metal को dip किया जाता है। ठीक है, when an electric जब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है इस सॉल्यूशन से तो प्योर मेटल जो है डिपॉजिट हो जाता है थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल से, और फ्रॉम अ लंप ऑफ इम्प्योर मेटल क्या किया जाता है, इम्प्योर मेटल को यूज किया जाता है एज एनोड और प्योर मेटल को यूज किया जाता है एज अ कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर क्या किया जाएगा, लंप ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ अ प्योर कॉपर आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन। दोनों को क्या करेंगे, डिप कर देंगे सॉल्यूशन में। किस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा। इम्प्योर लंप ऑफ मेटल जो है कनेक्टेड कर दिया जाएगा पॉजिटिव पोल से और स्ट्रिप ऑफ अ प्योर मेटल जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा नेगेटिव पे। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी सॉल्यूशन से तो प्योर मेटल जो है फ्रॉम एनोड से मूव करेगा कैथोड की तरफ एंड डिपोजिट ओवर इट, और impurities present in a metal are settled down near the bottom of the anode जो है हो जाएगा, और settled impurities जो है इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड एनोड मड कहेंगे। तो ये कॉपर का दिखा रखा है रिएक्शन, जो कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं तो कॉपर 2 प्लस है और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े गए तो कॉपर है। कोरोजन और एनसीडीटी के हम बारे में पहले भी बात कर गए हैं। कोरोजन का सीधा सीधा एग्जांपल है कि रस्टिंग ऑफ आयरन। अब प्रिवेंशन क्या करेंगे, बाय गैल्वेनाइजिंग कर लेंगे, पेंटिंग कर लेंगे, ये सारे जो है मेथड है। कोरोजन है यही है, रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, इन सब के बारे में बात करी गई है। तो कौन कौन से मेथड है, पेंटिंग है, ग्रीजिंग है, गैल्वेनाइजिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, एलॉइंग है। एलॉय क्या होता है, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड अ एलॉय। एलॉय क्या होता है, हमेशा मिक्स होकर बनता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। अब जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल, मेटल से हमेशा एलॉय जो है स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि मिक्स करके बनाया जाता है, और ये हार्डर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। ये मोर रेजिस्टेंस होता है, कोरोजन को ज़्यादातर झेल लेता है ज़्यादा देर तक।
ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉयज इज लोअर देन द कॉन्स्टिट्यूंट मेटल्स। कुछ एलॉयज है जैसे ब्रास में करेंगे तो 80% कॉपर होता है, जिंक 20% होता है, ब्रॉन्ज के अंदर 90% कॉपर होता है, 20% एसएन होता है, सोल्डर के अंदर 5% पीबी होता है और एसएन जो है 50% होता है। डोरेलियम के डोरालुमिन के अंदर जो है 95% एल्युमिनियम होता है, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम और 0.5% मैंगनीज होता है। स्टील के अंदर 99.95% जो आयरन होता है, 0.05% कार्बन होता है। स्टेनलेस में 74% एफई होता है, 18% सीआर होता है और 8% निकेल होता है। जर्मन सिल्वर में 60% कॉपर, 20% जिंक और 20% निकेल होता है। तो ये सारी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। दोस्तों मैं फिर आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 जो है अपलोड कर दिए गए हैं ऑलरेडी। वो इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। यहाँ पे क्या है कि कुछ एग्जांपल्स जो दिए गए हैं जो मैं यहाँ पे मैंने बनाया है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए। मैं यही बात करना चाहूँगा, जो एग्जांपल इसके अंदर मैंने डाला है और जो भी कंटेंट डाले हैं ये आपको कितना पसंद आया, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बहुत ही जल्द जो है हमने 4th, 5th, 6th और आगे के जितने भी जो चैप्टर्स हैं हम उस वहाँ पे डिस्कस करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। और साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से मोर वीडियोज़ हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में अगर आप चाहते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।